नमस्कार সকলকে हेलो एवरीवन। तो मेरी गला की आवाज़ बहुत ख़राब है, लेकिन फिर भी मैं ज़्यादा चीज़ लिख कर लाई हूँ। मैं यहाँ पे हिंदी बंगाली दोनों लैंग्वेज में कहूँगी। सिर्फ ये जो गाइडलाइंस है इसको अपने तरीके से समय के हिसाब से डिवाइड कर लेना और फॉलो कर लेना प्लीज़। ये एक रोड मैप हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। तो मैं पहले बंगाली एंड फिर हिंदी में बोलती हूँ। प्लीज़ स्टे कनेक्टेड टू दिस लिटरेचर एंड डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू दिस लिटरेचर, हिट द बेल आइकन सो दैट ইউ নেভার মিস অ্যান আপডেটস। সবাইকে বলছি যে প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এন্ড সাবস্ক্রাইব করুন, জুড়ে থাকুন এসপি লিটারেচারের সাথে। গলার অবস্থা খুব খারাপ, তার জন্য আমি অনেকটা লিখে নিয়ে এসেছি, কথা বলবো তার সাথে লেখাটা যাতে মানে দুটো মিলে যেন অসুবিধা না হয় তার জন্য এই প্রচেষ্টা। তো আমি এগুলো বলছি যেগুলো লিখে নিয়ে এসেছি। যে বা যারা 3 মাস থেকে 6 মাসে এই যে প্রিপারেশন নিচ্ছ আপকামিং সুন এক্সামের জন্য, বা কেউ 6 মাস ধরে এই প্রিপারেশন নিচ্ছ, বা 1 বছর থেকে বা তারও বেশি, যে ধরনের ক্যান্ডিডেট ক্যাটাগরির ক্যান্ডিডেট হও না কেন, পরিস্থিতির ক্যান্ডিডেট হও না কেন, তোমাদের কিন্তু হেল্প করবে। প্রথমে তো প্রিপারেশন গাইডলাইন্স, প্রথমে আমরা সিলেবাস দেখব, হাতে রাখবো, তারপর দুটো পেপারকেই দেখব, আর জেনারেল রিডিং একটা সিলেবাসটিকে ভালোভাবে পড়বো। তারপর আমরা দুটো পেপার পড়ার পর একটা ফাইন্ড ইউর ইন্টারেস্টিং এরিয়াস, একটা ইন্টারেস্টিং এরিয়া খুঁজে বার করবো। মানে একটা বলতে এই পেপার অনুযায়ী কোনটা বেশি ভালো লাগছে, কোনটা মোটামুটি, কোনটা কম ভালো লাগছে, কোনটা একদমই ভালো লাগছে না। তারপর ইকুয়াল ইম্পর্টেন্স দেবো বোথ পেপারে। আর ইংলিশে কিন্তু লেখাই আছে এগুলো, তো আশা করছি যারা ইংলিশ মিডিয়াম তাদের অসুবিধা হবে না। দেন আসবো আমরা এই দুটো মিলে আমরা আসবো সিলেবাস। এখানে আসবো পিওয়াই কিউজের দিকে নজর দেবো, সিলেবাস কভার করবো, রিভিশন করবো। তারপর হচ্ছে পিওয়াই কিউ অ্যানালিসিস করবো। আর সিলেবাস কভারের সময় একটা জিনিস ফলো করবো, আমার স্ট্রং ইউনিট বা স্ট্রং এরিয়া, উইক এরিয়াকে আমি আইডেন্টিফাই করবো। 4-6ও হতে পারে, 2-8ও হতে পারে, যার যেটা মানে ইউনিট ওয়াইজ রিভিশন করবো অ্যাজ মাচ অ্যাজ ইউ ক্যান অর মাল্টিপল টাইমস। যত বেশি রিভিশন করা যাবে তত ভালো, পেপার 1 পেপার 2 দুটোর ক্ষেত্রেই। নেক্সট আমরা পিওয়াই কিউজ অ্যানালাইসিস করার সাথে সাথে কী করবো, give focus on most important topics or concepts or ideas or questions। মানে আমরা সব থেকে বেশি রিপিটেটেড টপিক, কনসেপ্ট বা কোয়েশ্চেনের দিকে ফোকাস দেবো। এবং আমরা স্ট্রং উইক এরিয়া বের করার পর করবো, ফিগার আউট করার পর কী করবো, এটাকে অ্যানালিসিস করবো, কারণ পড়তে হবে। তারপর ফাইনাল রিভিশনের সাথে ফাইনাল প্রিপারেশন নিয়ে আসছি এদিকে টেনে। ফাইনাল প্রিপারেশন এখান থেকে সব কিছু নিয়ে গিভ মক টেস্ট প্লাস ম্যানেজ ইউর টাইম। মক টেস্ট দিলে টাইম ম্যানেজ হবে 3 ঘন্টা ধরে ধরে। তারপর কিপ কাম অ্যান্ড কুল, বি স্ট্রং, এগুলো সবগুলো ওই মুহূর্তে থাকতে হবে। প্রিপারেশন শুরু থেকে প্রিপারেশন শেষ, এমনকি এক্সামের দিন সকাল পর্যন্ত, এক্সামের 3 ঘন্টা। তারপর তুমি যা খুশি হয়ে যাও, মানে হচ্ছে মাথা ব্যথা হোক, মাথা ঘুরে পড়ে যাও, যা খুশি হয়ে যাও, কিন্তু ওই টাইম এই কয়েকটা মাস এগুলো মেনটেন করতেই হবে। সব থেকে তো রিল্যাক্সে থাকতে হবে, একটা কথাটা এখানে লিখতে ভুলে গেছি। ফোকাস, পজিটিভ মাইন্ডসেট, স্টাডি 4 to 6 to 8 আওয়ার্স। মানে এটা ভ্যারি করছে, যার কারো ক্ষেত্রে 4 ঘন্টা লাগতে পারে, কারো ক্ষেত্রে 6, কারো ক্ষেত্রে 8। কিন্তু আমি এরকম বলবো না যে আমাদের নেট ক্র্যাক করার জন্য দিনে 10 থেকে 14 ঘন্টা বা 18 ঘন্টা পড়তে হবে। হয়তো বা হতে পারে কারোর ক্ষেত্রে, কিন্তু ইন জেনারেল তো আমার মনে হয় না। তারপর হচ্ছে টেক প্রপার ফুড, স্লিপ, রেস্ট অ্যান্ড ব্রেক। পড়ার মাঝে ব্রেক, প্রপার খাওয়া দাওয়া, প্রপার ঘুম। সেটা শুধু পরীক্ষার আগের দিন নয়, পুরো 3 মাস 6 মাসের জার্নিতে। ফলো ইয়ার হবিস, যার যেটা, গান শুনতে, নাচ করতে, বাগানে গাছ লাগাতে, খেলা করতে, ক্রিকেট খেলতে, বাইরে যেতে, বন্ধুবান্ধবের সাথে আড্ডা দিতে, সিনেমা দেখতে, যার যেটা ভালো লাগে। আর বি হ্যাপি থাকতে হবে, আর রিল্যাক্স। একটা মোস্ট ইম্পর্টেন্ট এই পুরো জার্নিতে সব থেকে যেটা থাকতে হবে সেটা হলো রিল্যাক্স। উইদাউট রিল্যাক্স ইউ কান্ট অ্যাচিভ ইউর গোলস, উইদাউট রিল্যাক্সেশন। ওকে, সো তারপরে এভরিথিং উইল বি ফাইন, সব কিছু ঠিকঠাক হয়ে যাবে। এটাই আমি এখন হিন্দিতে বলে স্টপ করছি। তো গলার অবস্থা খুবই খারাপ, মানে কতদিনই যে ঠিক হবে ভগवान जाने। যাই হোক, मुझे आप लोगों को यही कहनी है, जो इंग्लिश मीडियम का स्टूडेंट्स है, आप लोगों को ये इंग्लिश में लिखे हुए समझ में आ जाएंगे। और बंगाली मैंने कह दी, अभी मैं हिंदी में बोल रही हूँ, प्लीज़ केयरफुली सुन लेना और अपने खाता में, नोट खाता में इसको लिख कर अपने घर के वॉल में टंग लेना, ताकि आपसे आपके आँखों के सामने हमेशा रहे, जिनको ये एग्ज़ाम क्रैक करनी है जेआरएफ के साथ। ओके, या फिर किसको क्या मिलेगी नहीं पता, लेकिन हमें हर टाइम फोकस रहना चाहिए जेआरएफ मिल जाए। लेकिन जेआरएफ नहीं होता है, मिनिमम नेट तो होंगे, है ना, लेकिन हमें फोकस सबसे बेस्ट को रखनी चाहिए, है ना। तो अगर हम परिश्रम करते हैं, टाइम, एनर्जी, मनी इन्वेस्ट करते हैं, तो बेस्ट चीज़ों के लिए ही प्रिपेयर होंगे, है ना। सो फिर से कहती हूँ, प्लीज़ डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर। अगर आप लोगों को लगता है कि एसपी लिटरेचर बहुत हेल्पफुल है, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए और जुड़े जाइए। প্রচুর পরিমাণে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন। শুরু করা যাক। तो मुझे यही कहनी है, प्रिपरेशन गाइडलाइंस। अगर आप 3 to 6 मंथ्स की प्रिपरेशन ले रहे हो अपकमिंग एग्ज़ाम के लिए, तब भी ये आपके लिए अप्लीकेबल है। अगर आप ऑलरेडी
6 मंथ्स टू 1 ईयर का एक्सपीरियंस है तब भी आपके लिए एप्लीकेबल है। अगर आप इससे भी ज़्यादा टाइम इसको एग्ज़ाम को दे चुके हो, किसी वजह से एग्ज़ाम नहीं क्लियर हुए, तब भी ये आपके लिए एप्लीकेबल है। तो पहले तो प्रिपरेशन गाइडलाइंस को 3 हिस्सों में मैंने बांट दी। सिलेबस को डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के हाथ के सामने रखो, फिर उसको 2 पेपर को अच्छे से सिलेबस पढ़ो, जनरल रीडिंग करो सिलेबस की। फिर क्या करोगे, फिर पेपर 1 पेपर 2 के जो फाइंड इंटरेस्टिंग पढ़ते पढ़ते आपको इंटरेस्ट मिल जाएंगे, कहाँ पे लग रहे हैं, कहाँ पे नहीं लग रहे। फिर आपको गिव इक्वल इंपॉर्टेंस इन बोथ पेपर्स। दोनों ही पेपर को आपको अच्छे तरीके से इंपॉर्टेंस देनी होगी। अगर नहीं दोगे, ना तो नेट होगी ना तो जेआरएफ होगी, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पीवाईक्यूज, सिलेबस कवर एंड रिविजन, ये 3 चीज़ आप साथ भी कर सकते हो। इसको डिवाइड करके भी कर सकते हो, और ये सारी चीज़ें आप अपने टाइम के हिसाब से डिवाइड कर लेना। मैंने कह दी सुबह पीवाईक्यूज, दोपहर को सिलेबस, शाम को रिवीजन। इट डज नॉट मीन दैट आप ऐसे ही फॉलो करेंगे। आपके लिए ये भी हो सकता है सुबह रिवीजन, दोपहर को पीवाईक्यूज, रात को सिलेबस कवर। आप ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन हाँ, सिलेबस एक ऐसी चीज़ है जिनको हम पहले कवर करेंगे, फिर साइड बाय साइड पीवाईक्यूज एंड रिवीजन चलते रहेंगे। अपने हिसाब से टाइम सेट कर लेना, किसी को भी अंधे तरीके से फॉलो मत करना, चाहे वो कितनी अच्छी यूट्यूबर और टीचर क्यों ना हो। अपने सुविधा को समझना, क्योंकि हर एक की कैपेबिलिटी यूनिक है और हर एक की कैपेसिटी यूनिक है और हर एक की क्षमता अलग है। तो मेरे लिए जो एप्लीकेबल है आप लोगों के लिए नहीं भी हो सकता है कामयाब, है ना। तो अपने तरीके, आपका क्या खामियां है, आपका क्या स्ट्रॉन्ग है, तो आपको ही ज़्यादा पता है दूसरे से ज़्यादा, ठीक है। फिर आपको क्या करनी होगी कि फोकस ऑन मोस्ट रिपीटेड टॉपिक्स, कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज और क्वेश्चंस। सबसे ज़्यादा रिपीट जो हुए पीवाईक्यू से आपको क्या करनी है, यही देखनी है। फिर आपको फाइंड आउट एंड फिगर आउट एनालिसिस क्या करनी है, आपके स्ट्रॉन्ग एंड वीक एरिया को फिगर आउट करनी है, फिर एनालिसिस करनी है। फाइनल प्रिपरेशन में हम आ जाएंगे, उसके में हम क्या करेंगे, मॉक टेस्ट देंगे, टाइम मैनेज करेंगे और साथ में काम एंड कूल रहेंगे, बी स्ट्रॉन्ग रहेंगे। अदरवाइज आप यू कैनॉट अचीव योर गोल्स। फोकस पॉजिटिव माइंड से स्टडी 4 to 6 to 8 hours मीन्स ये डिपेंड करेंगे आप लोगों के अलग अलग इंडिविजुअल के ऊपर। मतलब किसी के लिए 4 hours इज एनफ, किसी के लिए 6 hours, किसी के लिए 8 hours। मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को 10 घंटे 12 14 18 घंटे पढ़ना चाहिए। पढ़ते हैं शायद कोई, लेकिन मुझे नहीं लगता इतने ज़्यादा। 8 hours इज़ इनफ ऐसे कम्पिटिटिव एग्जाम्स को क्लियर करने के लिए, लेकिन फोकस तरीके से पढ़नी होंगी। तो आप लोगों के लिए 10 हो भी सकते हैं, हम कुछ भी विड्रॉ नहीं कर सकते, हर एक की लाइफ में अलग अलग बात होते हैं। फिर टेक प्रॉपर फूड, स्लीप, रेस्ट एंड ब्रेक। ये आपको ये जर्नी प्रिपरेशन 3 to 6 months 1 year जो भी जर्नी है इसके दौरान रखनी है, ना कि एग्जाम के पहले दिन। प्रॉपर खाना भी खानी है, नींद भी जानी है, रेस्ट भी लेनी है, ब्रेक भी लेनी है बीच बीच में, नहीं तो आप तो बोर हो जाओगे। फिर आपको हॉबीज़, फॉलो योर हॉबीज़। आपके हॉबीज़ को अच्छे तरीके से फॉलो करो। गाना सुनना हो गाना गाना हो, नाचना हो नाच देखना, रील्स देखना हो, क्रिकेट खेलना हो या गार्डनिंग करना हो या फिर कुछ भी हो, भाई बहन के साथ खेलना हो, दोस्तों के साथ सिनेमा देखना हो, कुछ भी हो, हॉबीज़ को फॉलो करो। डेली नहीं, वीकेंड में एक बार, लेकिन जो डेली है न्यूज़पेपर पढ़ना या फिर गार्डनिंग करना वो डेली कर सकते हो। 30 minutes 10 minutes 30 minutes 1 hour के लिए डेफिनेटली कर सकते हो। एक्सेप्ट दिस यू कांट डू दिस, क्योंकि सिर्फ पढ़ना नहीं है। और रिलैक्स, ये टोटल जर्नी में आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देनी है रिलैक्सेशन पे। मतलब जो भी करो कीप काम एंड कूल, रिलैक्स रहो भैया। कीप काम एंड कूल मीन्स रिलैक्स रहो बच्चों, सब कुछ हो जाएंगे। किसके थोड़ी पहले, किसके थोड़ी देर में, लेकिन होना ही है ना। चाहे वो कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम हो या चाहे वो जिंदगी में कोई भी बात हो, ठीक है। दैट्स इट फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। स्टे कनेक्टेड विद एसपी लिटरेचर। प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू एसपी लिटरेचर। थैंक यू ऑल, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, गुड नाइट, बाय, कीप लर्निंग, stay connected to this literature.